you have to know what are the process of the imperative sentence and how it is formed. Children, first of all, you have to know that the imperative sentences have the order, request, command, suggestion, or advice. All these things are in the imperative sentence, and on the base of the imperative sentence, how you have to change into indirect speech. First of all, you have to know that imperative sentences are used for order, request, advice, suggestion, urged. All these things are in the imperative sentences. And when you have to change into indirect speech, first of all, you have to know that the imperative sentence have the order, request, command, or advice. So we should never use the that for joining the sentences. And in the imperative sentence, when you are changing into indirect speech, first of all you have to change your reporting verb according to the sense of the sentence, such as ordered, commanded, requested, urged, advised, in the place of the said to. After that, you have to remove inverted comma, and at the place of the inverted comma, we should have to use to. It means to connector is used at the place of inverted comma for changing into indirect speech. And the third process of changing into indirect speech is that when there is the use of let, the rules are changed from the other sentences. When there is use of let, we have to change the reporting verb into proposed or suggested. And after that, we have to remove the inverted comma, and at the place of the inverted comma that is used. After that, in the place of us, we have to use we are, they, and should is also used. After that, the whole part of the sentence is used for changing into indirect speech. But when there is no use of the us after let, then the condition and the position of the sentence is different. When there is only let used in the sentence, in this condition, we have to change our reporting verb, ordered or requested according to the sense of the sentence. And after it, we have to join it with the to, not by that. This is the condition of the imperative sentence. And then, once again, you have to know that in imperative sentence, sometimes you have to know that there is the use of the could or would, such as would you like to take a cup of tea with me? Could you lend me your book, please? In this condition, these sentences are not considered in the category of the interrogative sentence, but we have to say these are the imperative sentences. And in the case of having would or could, we have also used the connector to for changing into indirect speech. So children, today we will read the changing of the imperative sentences into indirect speech. तो बच्चों, सबसे पहले आप देखेंगे कि आज हम सभी लोग जो imperative sentence को indirect में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिएगा imperative sentence होता क्या है। imperative sentence क्या होता है? इसके द्वारा order, request, command, advice, suggestion आदि फीलिंग्स का बोध होता है। तो जिन वाक्यों में ये सारी फीलिंग्स होती हैं उसको हम imperative sentence कहते हैं। और यदि वाक्य में जैसे imperative sentence दिया गया है और इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो ऐसे वाक्यों की रिपोर्टिंग वर्ब को जो है रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के भाव के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज्ड आदि में चेंज कर देते हैं। इट मीन्स सेट टू के स्थान पर हमको एडवाइज्ड, कमांडेड, ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना है। इसके बाद हमको इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हमें TO2 से जोड़ देना है, और
पहले TO2 का प्रयोग होता है तो वो फाइनाइट वर्ब जो है क्या बन जाती है, इन्फिनेटिव बन जाती है। और आप जानते हैं कि जब मेन वर्ब के पहले टू लग जाता है तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है। तो इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय जो हमारी मेन वर्ब होगी जिससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, जब उसके पहले हम टू लगा देंगे तो उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद जो है प्रोनाउन जो होता है और जो एडवर्बियल होता है उसमें चेंजिंग असर्टिव सेंटेंस के समान होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इसके बाद जो है यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसको बदलने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना है, सबसे पहले रिपोर्टिव वर्ब सेट टू को बदल देना है आपको ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज्ड, जैसा भी हमारे रिपोर्टेड स्पीच का भाव होगा उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे। फिर इसके बाद हम इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद TO2 के द्वारा सेंटेंस को जोड़ देते हैं और जो रिपोर्टेड स्पीच का जो मेन वर्ब होता है जब उसके पहले टू लग जाएगा तो उस वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा, सेंटेंस को उसी तरह से लिख लेना है। लेकिन सेंटेंस में यदि प्रोनाउन है या एडवर्बियल है तो प्रोनाउन को और एडवर्बियल को असर्टिव सेंटेंस के रूल में जैसे जो चेंजिंग का प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते हैं। अर्थात प्रोनाउन में जैसे है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसी तरह से एडवर्बियल में एस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुडे का दैट डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, नाउ का देन, और हियर का दियर, दिस का दैट, ये सभी जो है एडवर्बियल में चेंजिंग होती है। तो ये सारे रूल्स जो है सारे सेंटेंसेस में चलते हैं, इसमें कोई विशेष नियम नहीं होगा। अब इसके बाद में बारी आती है हमारा असर्टिव इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव जो होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव होगा वो डू नॉट से शुरू होगा और डू नॉट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए दो नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि हम वाक्य के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर या एडवाइस में बदल देंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद तुरंत में हम नॉट लिखेंगे, टू को हटा देते हैं। तुरंत हम नॉट लिख देंगे और नॉट के बाद टू लगा करके पूरे सेंटेंस को एज यूजुअल राइट कर देते हैं। अर्थात जब हम निगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग वर्ब को जो है वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइस में बदलना है। इसके बाद जो है इन्वर्टेड कामा को हटा करके फिर नॉट टू लगा देना है। नॉट टू के बाद से और जो रिपोर्टेड स्पीच का जो शेष भाग है उसी तरह से लिख देना है। अब निगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने का दो नियम होता है। एक दूसरा नियम होता है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी से टू के स्थान पर हम फॉरवर्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फॉरवर्ड, FORWARD। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आपने फॉरवर्ड लगा दिया और यहाँ पर जो डू नॉट दिया गया होता है इसको हम पूरा हटा देते हैं। केवल जो हमारी मेन वर्ब होगी इसके पहले हम टू लगा देंगे और पूरा सेंटेंस उसी तरह से लिख देते हैं। तो दोनों में से जो आपको इजी लगेगा निगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए उसको आप फॉलो करते हैं। अब बारी आती है हमारी लेट वाले सेंटेंस की। लेट वाले सेंटेंस जो होते हैं उनको इनडायरेक्ट में बदलने का नियम को दूसरा होता है। जैसे एक होता है कि लेट के बाद तुरंत अस आता है। जब लेट के बाद तुरंत अस आता है तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल जाती है। लेट के बाद अस आने पर रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में हम बदल देते हैं। इसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ दैट लगाते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगा दिया और इसके बाद अस के स्थान पर लेट के स्थान पर अस के स्थान पर भी या दे का प्रयोग किया जाता है। अस के स्थान पर जैसे हमारे सेंटेंस का भाव होगा या तो अस या तो भी लगाएंगे या तो फिर दे लगाएंगे। फिर इसके बाद शुड का प्रयोग होता है, यानी लेट के
स्थान पर लेट के बाद अस आने पर लेट के स्थान पर जो है शुड का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जब अस आ गया तो आपने क्या किया, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड में बदल दिया, इन्वर्टेड कामा को हटा दिया, यहाँ दैट लगा दिया, और दैट के बाद जो हमारा यहाँ पर प्रोनाउन आया था अस जो आता है, अस के स्थान पर या तो भी या फिर दे दिया जाता है। इसके बाद शुड लगा देते हैं और शुड के बाद बाकी सेंटेंस का पूरा पार्ट उसी तरह से लिखा जाता है। तो ये होता है लेट के बाद अस आने पर इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने की प्रक्रिया। फिर से एक बार, यदि लेट के बाद अस आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब से टू को प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लगाएंगे, अस के स्थान पर भी या दे लिख करके शुड लगाते हैं और शुड के बाद सेंटेंस का पूरा पार्ट जो है उसी तरह से लिख दिया जाता है, लेकिन लेट अस को छोड़कर। तो ये हो गया हमारा लेट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में, लेट अस वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने का नियम। अब अगला है आपका जो है, जब सेंटेंस में लेट नहीं आएगा तब उनको हम कैसे बदलते हैं। जब सेंटेंस में लेट नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में हमको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस के भाव को पहचानेंगे। अगर उसके बाद आर्डर का बोध हो रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आर्डर में बदल देंगे, यदि जो है रिक्वेस्ट का भाव है तो उसको रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लेट के पहले टू लगा देते हैं और पूरे सेंटेंस को उसी तरह से लिख देते हैं। प्रोनाउन और एडवर्बियल अगर होता है तो उसमें चेंजिंग असर्टिव सेंटेंस के समान होता है। तो इस तरह से हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस को जो है इनडायरेक्ट में बदलने का। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कुड या वुड से शुरू होते हैं, जैसे कुड यू माइंड गेटिंग मी ए पेन, वुड यू माइंड गेटिंग मी ए पेन, he said would you mind getting me a pen। अब यहाँ देखिएगा, इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे he requested to get him a pen, यानी कि इसमें वो रिक्वेस्ट कर रहा, वुड यू माइंड माने प्रार्थना के अंदाज में कहना, वुड यू माइंड माने क्या आप देना चाहेंगे, यानी रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो he requested to let him give a pen, he requested to let him give a pen। इस तरह से सेंटेंस में यदि वुड या कुड आता है तो उसको हम टू के साथ जोड़ देते हैं और सेंटेंस के भाव में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करते हैं। तो बच्चों, आज आपने इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने का जो नियम है उसको देखा। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। द टीचर सेड ओपन योर बुक्स, यहाँ पर देखिए टीचर है तो टीचर जो है बच्चों को क्या करेंगे, आर्डर देंगे। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, द टीचर आर्डर्ड, द टीचर आर्डर्ड। अब आपने इन्वर्टेड कामा को हटा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, टू लगा दिया। द टीचर आर्डर्ड टू ओपन, यहाँ पर योर की जगह डियर हो जाएगा। द टीचर आर्डर्ड टू ओपन डियर बुक्स। प्रोनाउन में परिवर्तन होना है और योर जो है आपका कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है तो जब जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है वो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। हमेशा नरेशन में जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा वहाँ पर थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर अंडरस्टूड होता है। तो इसलिए आपने यहाँ पर देयर लिख दिया। और दूसरा सेंटेंस है द फादर सेड टू हिम गिव अप द कंपनी ऑफ वाइट बॉयज। तो यहाँ पर फादर जो है वाइट बॉयज की कंपनी को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, यानी एडवाइस दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, द फादर एडवाइज्ड हिम टू गिव अप द कंपनी ऑफ बैड बॉयज। आपने इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर केवल टू लगा दिया, बाकी पूरे सेंटेंस को एज यूजुअल राइट करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होनी है। इस तरह से तीसरा देखिएगा, निगेटिव सेंटेंस आपके सामने आ गया। शी सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी एडवाइस दिया जा रहा है
तो पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग जब आप जो है फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे तब का जो नियम है क्या है, सी एडवाइज्ड मी, हमने आपको बताया टू हटाना, टू के बाद जो नॉट टू लगा देना है। सी एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट योर के स्थान पर क्या हो जाएगा, माई, क्योंकि ये जो है आपका सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा और यहाँ पर मी है इसलिए हो गया माई। तो सी एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर आप फॉरवर्ड लगा करके करेंगे तो आप क्या कहेंगे, सी फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम, यानी डू नॉट को आपने कंप्लीटली हटा दिया। डू नॉट को हटाने के बाद जो आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले आपने टू लगा दिया और आपको मालूम है कि जब मेन वर्ब के पहले टू लगता है तो वर्ब के फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होती, उसको आगे को राइट कर देते हैं। तो इसलिए हो गया शी फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम। अब अगला एग्जांपल देखेंगे, द कैप्टन सेड लेट हिम सेट फ्री, द कैप्टन सेड लेट हिम सेट फ्री। अब यहाँ पर देखिए लेट के बाद बस नहीं आया, केवल लेट आया है और इसमें कैप्टन कह रहे हैं, इट मींस ही इज गिविंग द ऑर्डर एंड इन द केस ऑफ गिविंग द ऑर्डर यू हैव टू यूज द ऑर्डर इन द रिपोर्टिंग वर्ब। आपको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या यूज करना है, ऑर्डर यूज करना है। तो द कैप्टन ऑर्डर्ड, अब इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके आपको टू लगा देना है। द कैप्टन ऑर्डर्ड टू लेट हिम सेट फ्री, यानी केवल आपने टू लगा दिया, बाकी पूरे सेंटेंस को एज यूजुअल राइट कर दिया। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है माय फ्रेंड सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक। इन वाक्यों में अस आता है, उसके लिए क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम किसमें बदलते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माय फ्रेंड प्रपोज्ड मी, माय फ्रेंड प्रपोज्ड मी। अब इसके बाद आपने यहाँ पर लगा दिया दैट, यहाँ भी है इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा, दैट वी शुड, दैट वी शुड। अब इसके बाद जो है लेट अस के बाद वाला जो पार्ट होता है वो पूरा उसी तरह से लिख दिया जाता है। तो माय फ्रेंड प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो फॉर ए पिकनिक। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस को किस तरह से हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ करके इसको दोहराइएगा और अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करेंगे। एज यू नो दैट यू आर द बोर्ड एग्जामिनिंग, so you have to prepare very well for the examination because only one mistake in your answer will may cut your marks. So be serious and prepare well for the examination and learn your chapters very carefully, children. And where is the problem in your any type of the lessons, you have to comment me and I will teach you again. So children, once again be sure for the rules of changing into indirect speech in the imperative sentence and